All right. Once again, welcome everyone at the channel. And in this video, we are going to explain the second comprehension of fifth chapter, the 100 dresses, part first. Wanda Petronsky. She was a little child. She was a Polish girl. She goes to school for her studies. There were two other girls, Peggy and Maddie. They waited for Wanda to come along with her to school because Wanda Petronsky looks different, and Peggy and Maddie both were interested to have talk with her and enjoy with her and many more things. As you know, this is the psychology of every individuals that they try to be accompanied by them in they would be interested जिसमें वो इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ वो रहना चाहेंगे। ये बच्चों की फितरत होती है, कहीं ना कहीं इंसानों की फितरत होती है। तो पेगी और मैडी दो बच्चियां हैं जो वंडा पेट्रंस्की के साथ रहना चाहती हैं, उसके साथ स्कूल आना चाहती हैं। जब भी वो अपने घर से निकलती हैं तो वंडा पेट्रंस्की का इंतज़ार करती हैं। और वांडा जो है वो पॉलिश गर्ल है, वो हर बच्चों से अलग है, दिखती भी अलग है। उसके कलर की बात करें तो बिल्कुल वो भी कलर डिफरेंट है, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और वहाँ के बच्चे बिल्कुल फेयर होते हैं, लोग भी फेयर होते हैं। और जो वंडा वंडा पैट्रन्स की है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर देश का जो संविधान होता है वो भी अलग होता है, लोगों का कलर भी अलग होता है, जलवायु भी अलग होती है। आई मीन एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो वंडा पेट्रन्स्की was absent on Tuesday, and Peggy as well as Maddie kept waiting for Wanda, but she didn't come. She was absent. Peggy and Maddie both became late to school on Tuesday, and there was nobody else who talked and noticed Wanda in the classroom except Peggy and Maddie, because these two girls were interested in Wanda Petronsky. What happens next? Let you know. Wanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. Most of the children. Maximum children in the room 13 didn't have name like that. I mean, Wanda Petronsky is a not common name. Okay, it's not a common name. It is different, and it is interesting. For example, in our school, mostly students come from Indian culture, and especially locality. They are similar, but if an American child migrated from somewhere else comes to school among them, she or he would be different. Her or his name would be different, look would be different, language would be different, dress would be different, and many more things. So Wanda's name was different in the classroom 13. They had names easy to say, and other children in that school were having easy name to say. जितने भी बच्चे थे उनका नाम बहुत ही आसान था, थॉमस, स्मिथ और एलन। ये बहुत ही सिंपल से नेम है उन लोगों के लिए जो अमेरिकन हैं। थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया। बट वांडा पेट्रन्स्की ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस। वाओ, एक बच्चे का नाम बाउंस था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, एंड इट वाज अ मैटर टू पोक फन, funny, but not funny in the same way that Petronsky was. Okay, but it was not more funny like Wanda Petronsky. जो वांडा पेट्रंस्की का नाम है ये थोड़ा सा सबसे अलग है उस क्लासरूम में।
इसलिए लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में. Wanda didn't have any friends. Wanda का कोई दोस्त नहीं था. She came to school alone and went home alone. She was lonely, coming to school and going to school. Sorry, going to home. She always wore a faded blue dress. She always, regular, she wore a faded blue. Faded means uh, not dark, light you can say. थोड़ा सा कलर उड़ जाता है जब कपड़े का, काफ़ी वन आउट हो जाता है 2 साल 4 साल पहनने के बाद, तो थोड़ा फेड हो जाता है. दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसको सही तरह से नहीं होता था. इट वॉज नॉट फिट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ हर बॉडी. इट सीम्स दैट इट वॉज अदर्स, किसी और का था. इट वॉज क्लीन, लेकिन वो साफ सुथरा होता था. बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. बट इट लुक्ड दैट शी हैज नेवर ironed the dress, ironed the cloth that she was coming to school. जो वो स्कूल में पहन के आती थी उसमें आयरन नहीं था, ऐसा लगता था, क्योंकि वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता था. She didn't have any friend. Again, she has no friend. She is an introvert girl because she belongs to college. She is not familiar with American students or girls, boys. So she is, you know, um, silent in the classroom. Okay, she doesn't want to have talk with students. But a lot of girls talk to her. लेकिन बहुत सारी लड़कियां वांडा के बारे में बात करती हैं. ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट है, लोगों से डिफरेंट है, तो लोग उसको नोटिस करेंगे, वो भले ना लोगों को नोटिस करे. अब आगे देखते हैं. But a lot of girls talked to her sometimes. They surrounded her in the schoolyard as they stood watching the little girls play hopscotch on the one hard ground. Hopscotch. It is a type of game in which children hop, kudna, okay, into and over squares marked on the ground. I mean, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कूदना, हॉपिंग करना, जंप करना. ठीक है, तो वो एक गेम जिसको हॉप स्कॉच कहते हैं, जिसमें हॉपिंग होती है, जंपिंग होती है, वो गेम जब खेलती थी वंडा पेट्रॉन्स की, तो ऑल द गर्ल्स सराउंडेड हर एंड वॉच टिल शी प्लेज द गेम. जब तक वो गेम खेलती है सारी लड़कियां उसको देखती रहती हैं. वांडा, पेगी would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब उसको पेगी जो है, एक लड़की है, अभी बताया आपको प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा पेगी एंड मैडी के बारे में. पेगी कहती है, वांडा क्या कहती है, इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैशन. मैशन, ऐसा लगता है कि वो मिस मैशन से बात कर रही है. वांडा शुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नस, अ जेंटल पुश, थोड़ा सा धक्का देना. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट. वांडा, कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोसेट में. ठीक है, क्लोसेट में तुम्हारे कितने ड्रेसेस हैं, ये कमेंट होता है पैगी के द्वारा. ठीक है, अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट पर चलते हैं. ये 100. वांडा उड से, वांडा रिप्लाइड 100. सो ठीक है, मतलब पेगी पूछती है कि तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस हैं, कितने कपड़े हैं, तो वो बच्ची कहती है 100. सो ऐसा क्यों, क्योंकि वो बच्ची सिर्फ एक ही कपड़ा पहन के आती है स्कूल में, दैट इज फेडेड ब्लू, एंड शी कम्स रेगुलरली इन अ सिंगल ड्रेस दैट इज अ फेडेड ब्लू. बट व्हेन गर्ल्स आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज इन हर क्लोसेट, शी रिप्लाइज 100. सो तो थोड़ा सा मजाकिया किस्म का हो गया कि हम रोज पहनते एक ही कपड़े हैं, लेकिन मुझसे कोई पूछता है कि मेरे घर कितने मेरे कपड़े हैं, तो मैं बताता हूँ कि 50 कपड़े हैं मेरे, लेकिन मैं समाज में एक ही पहन के घूमता हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा फनी किस्म का होगा ये. तो ऐसा ही था, पैगी उस चीज़ का मजाक उड़ाती थी. ठीक है, ये पहनती एक ही है लेकिन कहती है कि 100 कपड़े हैं मेरे क्लोसेट में. तो वहाँ क्या कर रहे हैं, पहनना चाहिए इसको. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen, showing unwillingness to believe. Okay, incredulously, showing unwillingness to believe means unbelievable. चीज़ों को बिलीव तभी किया जा सकता है जब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जब कहीं ना कहीं वो दिखे. सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है. तो वांडा पहनती थी सिर्फ एक कपड़ा और कहती थी कि मेरे घर, मेरे क्लोसेट में 100 ड्रेसेस हैं. Exclaimed all the girls and little girls, exclaimed
with surprise, shock. How is this possible? It is unbelievable. And they stop playing to listen what she says further. Now, yeah, 100. हाँ, 100 all lined up. सारे जो है lined up हैं, कतार में हैं, sequence में हैं, said Wanda. Then her thinly drew together in silence. What are they like? कैसे हैं? All silk, I bet, said Peggy. Peggy कहती है कि all, I bet, सारे सिल्क के होंगे, I bet. यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी सिल्क के हैं और हर तरह के हर कलर के कपड़े हैं. वेलवेट टू, वेलवेट भी, वेलवेट इट इज अ काइंड ऑफ ड्रेस और क्लॉथ विच इज सो सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है. यह वेलवेट टू, वेलवेट भी, मतलब पैगी उस चीज़ का मजाक उड़ा रही है, वंडा के एक्सप्रेशन का मजाक उड़ा रही है. वंडा कह रही है कि मेरे घर मतलब 100 ड्रेसेस हैं, पहनती सिर्फ एक है. तो होता है ना कि इसके पास तो शर्ट भी होगा, टी शर्ट भी होगा और सिल्क का भी होगा. सिल्क इज़ एन एक्सपेंसिव यू नो ड्रेस. इसका जो धागा होता है वो महंगा होता है. लिनेन हो गया, ये कपड़े महंगे होते हैं. रेशम हो गया, तो स्पेशली सिल्क इज़ नोन एज समटाइम्स. तो ये चीज़ें बार बार पैगी रिपीट करती थी, इसलिए क्योंकि वो इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में, उसको मज़ा आता था. शी वॉज पोकिंग फन. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly, not showing any feeling. Okay, means feelingless, expressionless. She doesn't give any expression while saying 100. Yeah, मतलब होता है ना कि बच्चे कोई चीज़ कर रहे हो और उनसे कुछ पूछें आप, तो वो रिप्लाई करते हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के. ओके, दे वुड नॉट इवन हैव अ लुक एट यू. आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आप तक मतलब आपके ऊपर देखेंगे भी नहीं और रिप्लाई कर देंगे. वो खेल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, दे वुड नॉट लुक एट यू, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बोल देंगे मेरा नाम मोहन है, बस अपना काम कर रहे हैं. नो एक्सप्रेशन, उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, कोई एक्टिविटी भी नहीं है. वैसे ही वंडा खेलती रहती थी और कोई पूछता था कितने, तो जवाब देती रहती थी विदाउट एनी एक्सप्रेशन. अब ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, फिर कहती है कि सारे एकदम सजे पड़े हैं उसमें. दे देन देर लेट हर गो, उसके बाद वो लड़कियां उसको जाने देती थी. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, वो तब तक बहुत दूर चली जाती. दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू shrieks एंड peals ऑफ लाफ्टर. तो जैसे ही वो दूर चली जाती थी, ये सारी लड़कियां आपस में बात करके हंसती थी कि बेचारी इतने ड्रेसेस हैं इसके पास, मतलब बिल्कुल इलॉजिकल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है जो वो कह रही है. ठीक है, हम कहते हो कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ फूड, लेकिन दिखने में कुछ नहीं है. दिखने में हम फटा पुराना कपड़े पहने हैं, दिखने में हम खाने को कुछ मिले ही ना. सो हाउ इज दिस बिलीवेबल, इसको कैसे बिलीव किया जाएगा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं. तो कोई भी सुनेगा तो इस चीज़ का मजाक उड़ाएगा. सेम हैपेंड विद वांडा, वांडा के साथ भी ऐसा ही होता था. वांडा जब इतना कह के वहाँ से चली जाती थी तो सारी बच्चियाँ हंसने लगती थी. अब 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. वास्तव में वांडा के पास सिर्फ एक ही कपड़ा था जो वो रोज पहना करती थी. So, इसलिए why did she say that 100 dress? वो 100 का नाम क्यों लेती है? पहनती तो सिर्फ एक ही है, लेकिन 100 ड्रेसेस की बात करती है. व्हाट स्टोरी, इसके पीछे कहानी क्या है? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 पेयर्स. बाप रे, वो बोलती है 60 पेयर्स, मतलब 120 शूज. 60 जोड़े उसके पास शूज हैं, 100 ड्रेसेस हैं. व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट, और कहती है कि सारे मेरे क्लोसेट में सजे पड़े हैं. ठीक है, समवेयर शी वाज रिप्लाइंग on the basis of her imagination, creation. Something was going on in her mind. उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था. And she was replying on the basis of that creation and imagination. What she had in her mind. जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, बिल्कुल वो उसी से सटीक मतलब मिलता जुलता जवाब देती थी. अब cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. बिल्कुल एक जैसे हैं वो. Exaggerated means hyperbole. Hyperbole means something that is more than need and less than need, or real you can say. कि कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर, या तो बढ़ाकर बताई जाए या फिर कम करके बताई जाए, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो
all alike. All the dresses are same in your closet. Oh no, every pair is different. All colors are lined up. All the dresses which I had in my closet are different colors. They are not like एक जैसे नहीं है. पेगी. अब पेगी की बात है. पेगी क्या कहती है? Let's you know who had taught up this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. ये हमेशा सबसे देर में जाती थी सब. ऐसा इसलिए क्योंकि इनको मजा आता था वंडा पेट्रॉन्स्की के साथ मजाक करना, उससे बात करना. फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट और वांडा आखिरकार स्ट्रीट गली में जब मुड़ती थी, हर आइज डल, उसकी आंखें जो थी वो डल थी. समवेयर डिसअपॉइंटमेंट यू कैन से, लोनलीनेस, हर माउथ क्लोज्ड, उसका जो एक्सप्रेशन था, जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल, अरे सॉरी माउथ, मुंह जो बिल्कुल बंद हो जाता था, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू हैव टॉक विद हर. हिचिंग her left shoulder every now then in the funny she was sorry way she had finishing the walk to school alone. और फिर वो स्कूल की तरफ अकेले जाती थी. मतलब कंधे को इधर उधर करना, बच्ची है. she was doing different kinds of activities and expression. Now Peggy was not really cruel. अब the narrator tells us about the character of Peggy. She was not really a cruel. वो वास्तव में cruel नहीं थी. She was not proudful, and she was not a wicked girl. She has no intention to hurt Wanda, but she always likes to have a talk with Wanda because Wanda was looking different, and she looks different with her dresses, color, language, and all the activities. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. Now, how is Peggy? Peggy कैसी है? She protected small children from bullies.